مرزا اور میں ہوں طارق حفیظ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماہرین کی رائے ہے کہ جولائی کے آخر تک کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 10 سے 12 لاکھ تک جا سکتی ہے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر لوگوں سے روزگار بھی چھن سکتا ہے۔ جہاں کرونا کیسز زیادہ ہوں گے وہاں پابندی لگائی جائے گی، مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اخلاق کی آئینی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے لوگوں کی صحت کا خیال کریں، ان کا تحفظ کریں، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو لوگوں سے پھر کاروبار بھی چھننا شروع ہو جائے گا۔ پہلے بھی جس وقت ہم نے ختم کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پورا ملک بند کر دیا جائے۔ آہستہ آہستہ دنیا اسی نتیجے پہ پہنچی ہے جو ہم کہتے تھے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تمام دنیا کے اندر یہ جو لاک ڈاؤن سے سارا ملک بند کر دیا جائے، اس سے ساری دنیا آگے نکل گئی ہے، لیکن ہم نے یہ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیے تھے تو اس کا مطلب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آسان سادہ سی بات یہ تھی، جہاں بیماری کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا وہاں پر جا کے بندش لگائی جائے گی، جس کو ہاٹ سپاٹ بھی کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر۔ بڑا ایک سائنس کی بنیاد کے اوپر، ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر وہ نظام بھی بنایا گیا ہے، جس نظام کو استعمال کرتے ہوئے صوبے جو ہیں ان کی بھی مدد کی جا سکے۔ اور وہ کام تو پہلے سے شروع ہو گیا تھا، بہت سارے لاک ڈاؤنز چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹڈ کلوزر کیے جا رہے تھے، لیکن کیونکہ وبا کا پھیلاؤ بڑا ہے، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس لیے بڑا ہے کہ میں اور آپ وہ حفاظتی تدابیر نہیں ان پر عمل کر رہے جن کی تاکید کی گئی تھی، اس لیے بدقسمتی سے وبا کا پھیلاؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ اس لیے دوبارہ لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے اب انتظامی کارروائی اس سلسلے کے اندر بھی اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ آج شام کو پنجاب کی حکومت جو ہے وہ بھی اعلان کرے گی کہ کس طریقے سے وہ مقام جہاں پر زیادہ پھیلاؤ نظر آ رہا ہے، شہروں کے اندر وہ علاقے جہاں بیماری اور وبا کا پھیلاؤ زیادہ نظر آ رہا ہے، تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہاں پر وہ انتظامی کارروائی کر کے مقامی طور کے اوپر وہ بھی کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے لا رہے ہیں، سی پیک کے تحت مغربی روٹ پر کام شروع کر دیا گیا ہے، سی پیک میں نئے منصورے شامل کیے جا رہے ہیں۔ جو خیبر پختونخوا کی سی پیک کے لیے ریکمنڈیشن آئی ہے اس میں یہ ہمارا چترال سے لے کے سوات موٹر وے اور پھر پشاور سے لے کے ڈی آئی خان اور ڈی آئی خان سے جوب تو ویسے بھی سی پیک کا حصہ ہے، تو اس کی بھی ریکمنڈیشن آ چکی ہے۔ اپنے ڈپارٹمنٹ اور منسٹری کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کو یہ تفصیلات بتاؤں کہ الحمدللہ سڑکیں پہلے سے زیادہ بن رہی ہے، لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم زیادہ اہمیت اس کو دے رہے ہیں۔ ایگزیکیوشن پہلے کے مقابلے میں 48% زیادہ ہو گئی، ریونیو آپ کا 35% زیادہ ہو گیا، اکاؤنٹیبلٹی جو پہلے بالکل آڈٹ ریکوری نہیں ہوئی تھی 11 ارب 90 کروڑ یہ پہلی دفعہ ہوئے، پچھلا اگر ان کے آخری سال دیکھیں انہوں نے کوئی ریکوری کا نظام نہیں تھا۔ ان کے جاری منصوبوں میں تقریباً 3 ارب سے زیادہ کی ہم نے سیونگ بھی کی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے جو نئے منصوبے بنیں گے قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ بنے بغیر بنیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کی طرف جا کے کمپیٹیٹو پروسیس میں داخل ہو کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں کے اوپر پر کلومیٹر ان کا کتنا خرچہ ہو رہا تھا اور اب کتنا ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا کہ نوجوانوں کے لیے یوتھ پروگرام شروع کرے، یوتھ پروگرام ہم نے پرائم منسٹر یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا بھی آغاز کر لیا، NHA کے اندر کلین اینڈ گرین پاکستان میں پارٹیسپیٹ کیا۔ بڑا میسج وائرل ہوا تھا کہ آپ یہ جو سڑکیں ہیں اس کے رائٹ اف وے کے اوپر اور اس کے دائیں بائیں آپ پھلدار درخت کیوں نہیں لگاتے کہ اس سے ریونیو بھی آئے، تو یہ ہم نے بالکل اس کے اوپر کام بھی کیا تھا، سوچا تھا، اولیو جو ہے اس کو فیزیبل پایا، لہٰذا ہمارا اس کا بھی معاہدہ ہو چکا ہے نیشنل بینک سے مل کر، اور وہ انشاءاللہ ہمیں پودے مہیا کریں گے۔ پہلے پلانٹیشن کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اولیو جس کے ریونیو بھی آپ اچھا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم گئے ہیں۔ چین کی اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ گوادر بندرگاہ پاکستان میں اقتصادی سرگرمیوں کا نیا محور ہوگی، 2030 تک ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں اس کا سب سے زیادہ حصہ ہوگا۔ چائنا اکنامک نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو کا کہنا تھا کہ گوادر پورٹ پر تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہیں اور اس کی مرمت و بحالی کے لیے ابتدائی طور پر $25 کروڑ خرچ کیے گئے ہیں اور مزید سرمایہ کاری کی جائے گی۔ بندرگاہ پر کاروباری مرکز کے قیام، سیم کے خاتمے اور سیوریج کے نظام سمیت سامان کی لوڈنگ کے لیے نئی ٹرینیں خریدی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندرگاہ بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے ایک مثال بنے گی۔ چین کی اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی گوادر کی بندرگاہ اور فری ٹریڈ زون کو چلائے گی۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے چین کو 2 کروڑ ماسک برآمد کرنے کے معاملے پر معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کو بری الذمہ قرار دے دیا ہے۔
मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा को 2 करोड़ मास्क चीन बरामद करने के इल्जाम से बरी करार दिया गया है। यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन सबूत पेश नहीं कर सकी। इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात रोकने की इस्तदा भी कर दी। FIA ने पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से 25 फरवरी को भिजवाई गई दरखास्त पर मुकम्मल छानबीन के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुआवन खुसूसी जफर मिर्जा का मास्क बरामद करने के लिए परमिट के अजरा से ताल्लुक साबित नहीं। दरखास्त गुजार अपने इल्जाम बारे कोई शवाहिद पेश नहीं कर सका। FIA का कहना था कि ड्रैप ने 30 जनवरी को हिफाजती अशिया की बरामद पर पाबंदी लगानी थी। ड्रैप ने मास्क बरामद करने के लिए चीनी कंपनियों को परमिट जारी किए और मास्क बरामद करने की इजाजत कवायद व ज़वाबित के तहत दी। नैब ने सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए बरतानिया से वापस लाने का फैसला कर लिया। नैब के मुताबिक सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी और मफरूर है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बैरून ममालिक फरार होने वाले मुल्जिमान की वापसी के लिए घेरा तंग कर दिया है। शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस मुल्जिम सलमान शहबाज को वापस वतन लाकर कानून के सामने पेश किया जाएगा। तर्जुमान नैब का कहना है कि सलमान शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी और मफरूर हैं। सलमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी हो चुके हैं। नैब सलमान शहबाज की वतन वापसी के लिए बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से दरख्वास्त करेगा और इस्तदा की जाएगी कि सलमान शहबाज को बरतानवी कानून के मुताबिक इंटरपोल के जरिए डिपोर्ट किया जाए। मुस्लिम लीग नून के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि नैब न्याजी गठजोड़ और कार्रवाइयों का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ ने नैब के सलमान शहबाज से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गठजोड़ के नतीजे में होने वाली कार्रवाइयों का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। 2 साल से सियासी बुनियादों पर कायम करदा केसेस में 1 रुपए की करप्शन साबित न हो सकी। कोरोना के केसेस तेजी से फैल रहे हैं और हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। लीगी रहनुमा का कहना था कि अपोजिशन मेंबरान पर कायम करदा केस तारीख का बदतरीन सियासी इंतकाम है। दूसरी जानिब 100 अरब की चीनी चोरी करने वाले जहांगीर तरीन को शाहाना प्रोटोकॉल देकर रुखसत कर दिया गया। जहांगीर तरीन का नाम ना तो ECL में डाला गया और ना ही FIA की तरफ से पूछा गया, मगर छुट्टी वाले दिन नैब दफ्तर खोलकर सलमान शहबाज के हवाले से स्टेटमेंट जारी करता है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम से कम 10% इजाफे का मुतालबा किया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन बिलखुसूस कम स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करना नाकाबिल कबूल है। जी हाँ, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई हर हद पार कर चुकी है, सेहत के अखराजात बढ़ चुके हैं। ऐसे में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह न बढ़ाना नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। मौजूदा बजट से जाहिर नहीं होता कि मुल्क मुआशी इक़्तिसाद बाजारी और सुस्त रवी से गुजर रहा है। शहबाज शरीफ ने बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत से सवाल किए कि मुआशी तहरीक पैदा करने के इक़दाम कहाँ हैं, सरकारी शोबे के तरक्याती अखराजात और मंसूबे कहाँ हैं। वो इक़दाम दिखाई नहीं देते जिनसे रोजगार पैदा हो और लोगों की गुर्बत कम हो सके। किसानों की मदद के लिए किसी प्रोग्राम का बजट में जिक्र तक नहीं है। मौजूदा हुकूमत किसान और ज़राअत के लिए इक़दामात में भी बुरी तरह से नाकाम हुई है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर आज़म को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। उनका विजन है कि सरकारी मुलाजमीन को अच्छी तनख्वाह मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ की बजट पर तनकीद। शहबाज गिल ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि हालात के बेहतर होते ही सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। नून लीग अपने दौर में कोई एक सरकारी इदारा ठीक ना कर सकी। कोई शहबाज शरीफ को बताए कि सेहत का बजट उनके दौर से दुगना हो चुका है। पेट्रोल की कीमतें खित्ते में सबसे कम हो चुकी हैं। शहबाज गिल ने कहा कि यही बात अपोजिशन को हैरान कर रही है कि इन हालात में ऐसा बजट कैसे आ गया। अगर बजट पढ़ा होता तो पूछना न पड़ता कि माशी तहरीक के इक़दाम कहाँ हैं। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 81 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 2632 हो गई। 6825 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,36,897 हो गई। अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद 51,735 है। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ SOPs पर अमल दरामद न करने का खमियाजा अवाम अब भुगतने लगे हैं। 24 घंटों में मजीद 88 मरीज इंतकाल कर गए हैं। सिंध में 816, पंजाब में 969, खैबर पख्तूनख्वा में 661, बलूचिस्तान में 83, गिलगित बल्तिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में 12 और इस्लामाबाद में 75 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 6,825 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। मरीजों की तादाद 1,36,897 हो गई।
पंजाब में 52,601, सिंध में 51,518, खैबर पख्तूनख्वा में 17,450, बलूचिस्तान में 8,028, गिलगित बल्तिस्तान में 1,095, इस्लामाबाद में 7,934, आज़ाद कश्मीर में 604 मरीज हो चुके हैं। मुल्क भर में 51,000 मरीज सेहतयाब होकर घरों को भी जा चुके हैं। उधर दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,35,000 हो गई। मरीजों की तादाद 79 लाख तक जा पहुंची है। 40,60,000 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,35,000 जिंदगियां निगल चुका है। मरीजों की तादाद 79 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,17,527, बरतानिया में 41,662, इटली में 34,301, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,398, जर्मनी में 8,867, ब्राजील में 42,791 अफराद हलाक हो चुके। कनाडा में 8,107, रूस में 6,948, भारत में 9,204, तुर्की में 4,792, ईरान में 8,837, अफगानिस्तान में 460 और सऊदी अरब में 932 अमवात वाक़ हो चुकी हैं। अब आपको पता है मुल्क के 44 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं। अब तक पूरे मुल्क में 6,04,000 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात जारी करते हुए कहा है कि इस वक्त मुल्क के 44 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलूचिस्तान के 29, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब का 1 और सिंध के 5 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हुए हैं। टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान NDM ने बताया है कि 1281 मुश्तरका टीमों ने लोकेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। 24 घंटे में 3,38,000 एकड़ रकबे का सर्वे हुआ है। 8,320 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने विफाकी बजट को हुकूमती बातों का पलंदा करार दे दिया। कहते हैं बजट मुस्तरद करते हैं, इसमें अवाम को कुछ नहीं मिला, हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि बजट पर किसी सियासी जमात से कोई राबता ही नहीं किया गया। इस बार बजट में बस IMF से मशवरा किया गया है। हमें लग रहा था कि हुकूमत अपनी गलतियों का इजाला करेगी, लेकिन इस बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। सिराजुल हक ने कहा कि सूबों के बजट में कमी की गई और कबायली इलाकों के लिए भी बजट में कुछ नहीं रखा। इस बजट से तो बलूचिस्तान के अवाम बहुत मायूस हुए। जैसे ही बजट पेश हुआ महंगाई 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार शरह नमू मनफी आई है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि कोरोना वायरस से हुकूमत को एक बहाना मिल गया, क्योंकि इसके नाम पर हुकूमत को बाहर से कर्जे मिल रहे हैं। दुनिया एक तरफ और हम दूसरी तरफ चल रहे हैं। लिहाजा मुतालबा करते हैं कि हुकूमत मौजूदा बजट पर नजरसानी करे और बजट का पहला हिस्सा आवाम, दूसरा हिस्सा तरक्की और तीसरा हिस्सा इंतजामी अखराजात पर मबनी हो। पंजाब की जामियात में डिग्री के हुसूल के लिए कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ने की शर्त लागू कर दी गई। एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पंजाब के तमाम जामियात में लेक्चरार तलबा को तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ाएंगे, जो कि इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। कोरोना वायरस के पेश नजर सऊदी हुकूमत रवां साल हज मनसूख करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। सऊदी अरब के हुक्काम ने 1932 में सल्तनत के कयाम के बाद पहली बार रवां साल हज मनसूख करने पर गौर शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत हज के सीनियर ओहदेदार ने बताया है कि कोरोना वायरस के केसेस 1 लाख से जायद होने के बाद हुक्काम रवां साल हज मनसूख करने पर गौर कर रहे हैं। हुक्काम मामले का बारीकबीनी से जायजा ले रहे हैं और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है, जबकि बाज़ाबिता फैसला 1 हफ्ते के अंदर कर लिया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार कहते हैं SOPs की खिलाफ वर्जियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, मास्क पहनने पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में अतिया की जाने वाली रकम के अमीन हैं। इमदादी रकूम को ईमानदारी के साथ हकदारों तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम ने हर चैलेंज का बहादुरी से मुकाबला किया है। हम सबको बदलते हुए माहौल के मुताबिक तर्ज जिंदगी बदलना होगा। वजीर आला पंजाब का कहना था कि SOPs पर अमल करने में ही तहफ़्फ़ुज़ है। पंजाब में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा।
खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए अवाम को हुकूमती इक़दामात पर मिनो-अन अमल दरामद करना होगा। बाजारों और मार्केटों में SOPs की खिलाफ वर्जियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबाई वज़ीर खुराक अलीम खान ने कहा है कि चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। अब्दुल अलीम खान के मुताबिक पंजाब भर में इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती दिलचस्पी से चीनी की कीमत में नुमाया कमी की जा रही है। किसी को बुनियादी अशियाए खोरनोश में बेजा इजाफा नहीं करने दिया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर ने अपने बयान में कहा है कि पेट्रोल के बाद चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी इंतहाई खुशाइंद है। शहरियों को तमाम शोबों में खातिर खा रिलीफ हासिल होगा। चीनी के नाम पर नाजायज मुनाफा कमाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक हैं। ऑपोजिशन को भी चीनी की कीमतों में कमी को सराहना चाहिए। चीनी की तरह आटे की कीमतें भी मुस्तहकम रखने की कोशिश करेंगे। जहां कहीं खिलाफ वर्जी हुई इंतजामिया सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं स्मार्ट और टारगेटेड लॉकडाउन ही कोरोना फैलाव को रोकने का बेहतरीन जरिया है। पंजाब में अब तक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7,000 से ज्यादा कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां सनती यूनिट्स, दुकानों, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट के खिलाफ की गई है। ये वक्त तनकीद की बजाय मुत्तहिद होकर कोरोना को शिकस्त देने का है। अवाम और ताजिर बरादरी से गुजारिश है कि SOPs पर अमल दरामद करके अपना मस्बत किरदार अदा करें। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान पहले दिन से ही स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर जोर दे रहे हैं। पंजाब में सरदार उस्मान खान बुज़दार वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मामलात चला रहे हैं। पाकिस्तान ने काबुल में मसाजिद पर दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहती हैं अफगान अवाम के साथ इजहार यकजहती का इयादा करते हैं। इबादत गाहों पर दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं हो सकता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी ने एक बयान में कहा है कि काबुल के इलाके वजीर अकबर खान और शेर शाह सूरी मसाजिद पर हमले की मजम्मत करते हैं। इन घिनौने हमलों की वजह से मारूफ आलिम दीन डॉक्टर अयाज नियाजी और मौलवी अजीजुल्लाह समेत कई नमाजी शहीद हुए। गमजदा खानदानों से ताज़ियत करते हैं और जख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि अफगान अवाम के साथ इज़हार यकजहती का इयादा करते हैं। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। अमरीकी खातून वनीसा ने अपनी बेलौस मोहब्बत का इजहार करते हुए बहरे ओकियानूस के गहरे पानियों में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। अमरीकी खातून वनीसा ओब्रायन ने बहरे ओकियानूस के 10,923 मीटर गहरे समंदर में पाकिस्तानी परचम लहराया। वनीसा K2 की चोटी पर भी पाकिस्तानी परचम लहरा चुकी हैं। वनीसा ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत और सपोर्ट मिली। पाकिस्तान के लोग शानदार और इंतहाई मेहमान नवाज हैं। उनकी दोस्ती उम्र भर के लिए होती है। वनीसा ने कहा कि मगरबी मीडिया पाकिस्तान की जो तस्वीर दिखाता है वो असल पाकिस्तान की अक्कास नहीं। असल पाकिस्तान देखना है तो वहां जाकर देखना चाहिए। लेजेंड अदाकारा और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम सबीहा खानम अमरीकी रियासत वर्जीनिया में इंतकाल कर गईं। सबीहा खानम ब्लड प्रेशर और शुगर समेत कई बीमारियों में मुब्तला थी। उनकी उम्र 85 बरस थी। तदफीन अमरीका में ही होगी। सबीहा खानम ने 2 दिहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। पहली पाकिस्तानी गोल्डन जुबली फिल्म भी सबीहा खानम के हिस्से में आई। सबीहा खानम को बेहतरीन अदाकारी पर तमगाए हुस्ने कारकर्दगी भी दिया गया। सबीहा खानम का असल नाम मुख्तार बेगम था। वो 1935 में पैदा हुई। उनके वालिदैन मोहम्मद अली माहिया और बालू बेगम थिएटर में काम करते थे। सबीहा खानम ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1950 में फिल्म बेली से किया। 1954 में फिल्म गुमनाम से उनकी शोहरत को 4 चांद लग गए। फिर 1956 में उन्होंने फिल्म दूल्हा भट्टी में नूरा का किरदार अदा किया जो शायकीन फिल्म के दिलों पर नक्श हो गया। अदाकारा सबीहा खानम ने सबसे ज्यादा फिल्में संतोष कुमार के साथ की और उन्हीं से उनकी शादी भी हुई। सबीहा खानम एक अरसे से अमरीका में मुकीम थी। और अब टुडेज इंटरनेशनल। चीन में
खौफनाक ऑयल टैंकर धमाके से 20 अफराद हलाक और 180 जख्मी हो गए। टैंकर धमाके से करीबी इमारतें शदीद मुतासिर, मुतादिद को जुज़वी नुकसान हुआ। चीन के मशरिकी शहर में ऑयल टैंकर धमाके से कोहराम मच गया। तेल से भरा ट्रक अचानक फटा जिससे 20 अफराद हलाक और 180 जख्मी हो गए। धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। हादसे में मुतादिद इमारतों को जुज़वी नुकसान भी हुआ। इमदादी कार्रवाइयों में 150 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। तमाम जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए यूरोप और अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के मुताबिक कंपनी कोरोना वैक्सीन की 40,000 सैंपल यूरोप को फराहम करने की पाबंद होगी। यूरोप ने कोरोना वैक्सीन की तैयारी से कबल ही अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी से वैक्सीन की खरीदारी का मुआहदा कर लिया। अमेरिकी कंपनी में कोरोना की वैक्सीन की तैयारी का काम जारी है। यूरोपीय ममालिक प्रोडक्शन के फौरी बाद वैक्सीन खरीदारी का इरादा रखते हैं। अमेरिकी कंपनी ने कोरोना वैक्सीन की 2 अरब सैंपल्स बनाने का इरादा जाहिर किया है। अमेरिका कंपनी से पहले ही 10 करोड़ सैंपल्स की फराहमी का मुआहदा कर चुकी है। नेपाल ने भारतीय ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। नेपाल की पार्लियामेंट में नया नक्शा भारी अक्सरियत से मंजूर हो गया। अरकान पार्लियामेंट ने नए नक्शे के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। चीन के बाद नेपाल ने भी भारत को नाकों चने चबवा दिए। मुतनाज़ा इलाकों में नेपाली फौजें दाखिल हो गईं। नेपाल की पार्लियामेंट ने नए नक्शे की मंजूरी दे दी। नेपाली पार्लियामेंट में 275 सीटों के ऐवान से 258 वोट कास्ट हुए। नक्शे की मुखालफत में कोई वोट न डाला गया। नए नक्शे में लिपो, लेम्पिया और कालापानी को नेपाल का हिस्सा करार दे दिया गया है। और अब टुडे स्पोर्ट्स। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान कहते हैं, चाहता हूं बोर्ड की तरफ से मिली हुई जिम्मेदारी को ऐसा अंदाज में निभाऊं। अपना इंतखाब कारकर्दगी दिखाकर दुरुस्त साबित करना ख्वाहिश है। पाकिस्तान के मायनाज टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान ने बतौर बैटिंग कोच जिम्मेदारियां मिलने पर पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं, पीसीबी ने दौरा इंग्लैंड के दौरान बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां तफवीज की हैं। अपनी जिम्मेदारियों को ऐसा अंदाज में निभाकर साबित करूंगा कि उनका इंतखाब दुरुस्त है। साबिक कप्तान ने कहा कि वो मुश्किल सूरत हाल में खिलाड़ियों को चैलेंजेस के लिए तैयार करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तैयारी के लिए 1 माह काफी होगा। तकनीक बेहतर होना अच्छी बात, लेकिन खिलाड़ियों को जहनी तौर पर मजबूत बनाना अहम है। यूनुस खान ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया का माहौल तब्दील हो चुका। सिर्फ पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज ही नहीं, पूरी दुनिया के खेलों का मिजाज बदल चुका है। हमें इस हकीकत को तस्लीम करना और खिलाड़ियों को जहनी और जिस्मानी तौर पर एहतियाती तदबीर के लिए तैयार करना है। साबिक भारतीय बैट्समैन गौतम गंभीर ने शाहिद आफरीदी के कोरोना वायरस से जल्द सेहतयाब होने की दुआ करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जी हां, साबिक इंडियन खिलाड़ी गौतम ने अपने तल्ख रवैये को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी की कोरोना वायरस से जल्दी सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि किसी को भी इस वायरस से मुतासिर नहीं होना चाहिए। अगरचे शाहिद आफरीदी के साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन चाहता हूं कि वो जल्द अज जल्द इस मरज से सेहतयाब हो जाए। साबिक जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी हर्षल गब्स ने भी अपनी एक ट्वीट में शाहिद आफरीदी को मुश्किल हालात में हौसला दिया है, जबकि बांग्लादेश के खिलाड़ी ने भी अपने ट्वीट में उनके लिए दुआ की है। और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। शिकारपुर में सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस न होने पर मैयत गधा गाड़ी पर ही घर रवाना कर दी गई। इलाका गढ़ी यासीन का रिहायशी फकीर गर्मी के बायस बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया मगर जानबर न हो सका। अस्पताल इंतजामिया ने एम्बुलेंस न होने के बायस मैयत गधा गाड़ी पर ही रवाना कर दी। गढ़ी यासीन स्पीकर से असेंबली आगा सिराज दुरानी के हल्का है। खारिया से खबर देते हैं आपको, जहां हवाई फायरिंग करके सोशल मीडिया पर वीडियो डाउनलोड करने वाला नौजवान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पिस्टल बरामद कर लिया गया। खारिया के मोहल्ला जोड़ा के रिहायशी नौजवान नदीम अब्बास ने पिस्टल से हवाई फायरिंग करके वीडियो टिकटॉक पर शेयर की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम नदीम को गिरफ्तार करके नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया।
टिड्डी दल के हमलों में तेजी आ गई है। फसलों के साथ बागात और चरागाहों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हरनाई में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में फसलों को चिट कर दिया है। फसलों के साथ साथ बागों और चरागाहों में भी तबाही के मनाजिर देखने को मिलते हैं। स्प्रे न होने से किसानों का लाखों का नुकसान हो गया। काश्तकारों के मुताबिक प्याज, लहसुन, गन्ना, करेला और टमाटर की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। शहदादपुर में नकाबपोश घर से करोड़ों के जेवरात और कीमती अशिया ले उड़े। शहदादपुर के इलाके लतीफ पाक में डाकू नजदीकी प्लॉट से घर में दाखिल हुए। अहले खाना को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया और 2.5 किलो सोना, 5 लाख रुपए और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए मगर कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। आप